Today we are going to start a very most important topic that is also my one of the favorite topic. So let's we are going to start. Actually, today we are going to discuss the term that is called SDLC. It is one of my favorite topic also in computer science, and I like to express this particular concept or process by which we can create any kind of software in very limited time or very accurate software. अभी एक्चुअल क्या है ये कहीं भी कोई प्रोग्रामिंग नहीं है फर्स्ट पॉइंट इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट बाय विच यू कैन क्रिएट any kind of work or any kind of system you can create any kind of system ठीक है और ये बेसिकली आपका प्रोग्रामिंग का पार्ट भी नहीं है ठीक है अब एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कनेक्टेड हो मुझसे अभी यू विल बी द वन ऑफ द डॉक्टर इंजीनियर एंड रिलेटेड थिंग्स रिलेटेड पर्संस आने वाले समय में होंगे मेरी तरह टीचर भी हो सकते हो तो आप दुनिया में कुछ भी बनो आपको एसडीएलसी पढ़ना है व्हाट एक्चुअली द एसडीएलसी मींस बेसिकली एसडीएलसी स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पूरा का पूरा एमबीए में आपको एक सेमेस्टर में ये पार्ट को पूरा पढ़ना होता है एक्चुअली इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल स्ट्रीम चाहे आप डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो मेरी तरह टीचर बनो लेक्चरर प्रोफेसर बनो चाहे आप आगे चल के कोई सिंगर बनो दुनिया में कुछ भी बनना है आपको ये आना चाहिए what actually this particular thing is basically whenever we use this concept in our field that is the computer science we just change the term to system to software सिर्फ क्या बदलता है तो सिर्फ एक टर्म बदल जाता है एंड दैट एक्चुअली इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बाकी सारी चीजें एज इट इज होती है और नो डाउट वी ऑल आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन एसडीएलसी अब हम लोग कैसे एक इस पर्टिकुलर टॉपिक से अटैच है फ्रॉम योर ओन चाइल्डहुड आपके बचपन से ये आप करते आ रहे हो बट आपको पता नहीं है तो ये क्या है इसको हम लोग वन बाय वन जानते हैं So first, SDLC stands for System Development Life Cycle, and for the computer science student, it is called Software Development Life Cycle. As you all know that, whenever you are going to program or whenever you are going to start writing the code for the any specific purpose, you have to plan something. That means you have to perform some set of phase that is required for executing, that is required for writing this kind of code. So what actually the different phases that we find inside this particular thing and that make it as a cycle or life cycle for the any kind of development. अब as for example आपको 11 क्लास में हो आप अभी और आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़नी है ठीक है अब एक पर्टिकुलर टॉपिक जैसे मैथमेटिक्स पढ़नी है आपको 11 के सारे कोर्सेज पढ़नी है तो आप इसके लिए सबसे पहला टर्म क्या करते हो यू हैव टू टेक एडमिशन इन एनी स्कूल और इंस्टीट्यूशन पहला स्टेप होता है सेकंड स्टेप क्या है यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट एक्चुअली द सिलेबस यू हैव टू रीड देन आफ्टर आप आइडेंटिफाई करते हो कि उसके रिलेटेड क्या रेफरेंस होंगे क्या बुक्स होंगे कौन से टीचर से आपको पढ़नी है आपके सब्जेक्ट टीचर कौन है क्लास टीचर कौन है आपके सिस्टम को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कौन है दैट मीन्स आपको डिफरेंट फेजेस पे इसको जानना पड़ता है एंड उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका डेली लाइफ आपका डेली लाइफ कैसा होगा तो सेम प्रोसेस यहाँ भी है actually whenever we go through this term we actually identify the one of the number of phases or we can say that number of um, process by which we can achieve this particular thing and that actually called SDLC. So whenever we start any particular SDLC step then first step is also called always called SRS. Here SRS stands for system or software requirement specification. What actually the meaning of specification here and requirement here? Actually, whenever you are going to develop any software, you must have
required information, what actually is going to be created, and what are the different phases that is required to that is what are the different datas that is required to develop the software or develop the system. That means यहाँ बात कर रहा हूँ रिक्वायरमेंट की, बिना रिक्वायरमेंट के कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं बना जा सकती है. And as you all know that it is a basic principle, IPO. So every system need input, and if we are talking about IPO cycle, then you always have to focus over the term that is called requirement. Requirement specification is the one of the most important specification that is required for SDLC. Whenever we have some set of requirement over this particular thing, then there is another part that is called SAS. SAS stands for system, और एक्चुअली हमें सॉफ्टवेयर पढ़ना है इसलिए मैं सॉफ्टवेयर टर्म को लिखता हूँ यहाँ पे. एनालिसिस स्पेसिफिकेशन. एक्चुअली व्हाट इज द मीन ऑफ एनालिसिस हियर. अब एज फॉर एग्जांपल मान लो सिद्धार्थ से मैं पूछता हूँ, सिद्धार्थ व्हाट इज योर नीड फॉर क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर योर स्कूलिंग और फॉर ऑनलाइन क्लासेस. हो सकता है सिद्धार्थ के नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट मुझे समझ में आए, पसंद भी आए, बट कुछ ऐसे भी रिक्वायरमेंट होंगे जो अनवांटेड होंगे, कॉस्टली होंगे और हमारे बजट को इफेक्ट कर सकते हैं. तो उस सेंस में क्या करेंगे, वी हैव टू एनालाइज व्हाट एक्चुअली द रिक्वायर्ड थिंग हियर. दैट मींस यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज एक्चुअली द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. हियर वी आर गोइंग टू फिल्टर द कंटेंट और फिल्टर द रिक्वायरमेंट. एज्यूम करो कि आप एक किसी कंपनी के ओनर हो और मैं आपके पास आता हूँ आपसे रिक्वायरमेंट लेने के लिए. तो आप अपने रिक्वायरमेंट बताओगे, नो डाउट. तो रिक्वायरमेंट जब भी बताओगे तो सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर. आपने जो सॉफ्टवेयर बनवानी है उसकी कॉस्ट क्या देने वाले. अब एज फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ सॉफ्टवेयर 5000 में भी बनता है, ठीक है, और 5 लाख में भी बनता है. तो ये हमारे सॉफ्टवेयर के क्वालिटी के ऊपर है. जैसा आपका क्वालिटी चाहिए उस हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ती है. दैट एक्चुअली द रिक्वायर्ड थिंग दैट यू हैव टू फॉलो. तो उस बेसिस पे कंपनी ने मुझे रिक्वायरमेंट दी. व्हेनेवर वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट, वी एनालाइज द कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर विल बी गोइंग टू हाई. ये बढ़ रहा है कॉस्ट, या फिर व्हाट एवर द रिक्वायरमेंट दैट he or she given to me is not going to be completed due to technology problem. यानी बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम हो सकते हैं आज के डे में भी जो फुलफिल नहीं हो सकता. तो आपके इमेजिनेशन के ऊपर आपने अपना रिक्वायरमेंट दिया, अपने प्रॉब्लम के ऊपर आपने रिक्वायरमेंट दिया, अपने पार्टिकुलरली जो आपके रिक्वायर्ड चीजें, जो नीडेड चीजें आपने उसका रिक्वायरमेंट दिया. लेकिन उसके बेसिस पे दो फैक्टर आ जाते हैं जो मैं हमेशा बोलता हूँ. You always have to carry this one, m multiply by t is equal to e. E multiply by e equal to m. And last one is, wait, m multiply by e equals to t. ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आज याद कर लो. आने वाले समय में जब आप पेरेंट बनोगे, आने वाले समय में जब आप एक बिजनेस होल्डर बनोगे, आने वाले समय में जब आप किसी कंपनी का एम्प्लॉय बनोगे, तो ये तीन बेसिक फैक्टर आपको हमेशा हेल्प करेगा टू एनालाइज द रिक्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम. फर्स्ट एम इज हियर मनी, ठीक है, टी इज हियर टाइम एंड ई इज हियर एफर्ट. मनी, टाइम, एफर्ट, ये कॉन्सेप्ट आपने बचपन में भी पढ़ा होगा क्लास 7 और 8 में, कि जब आप मनी लगाते हो और टाइम लगाते हो तो एफर्ट बचता है आपके पास. व्हेनेवर यू अप्लाई टाइम एंड एफर्ट यू विल हैव मनी. पैसे बचते हैं उससे. जब आपके पास मनी लगाते हो और एफर्ट लगाते हो तो आपके पास टाइम बचता है. एंड इन टुडेज एरा टाइम इज द मनी. हमेशा याद रखना है, मनी क्या है, टाइम है. टाइम ही आपका मनी है, वो करेंसी कोई मनी नहीं होता है. अब ये मैंने टर्म ऐसा क्यों बोला, बेसिकली टाइम इज द मनी बिकॉज एज फॉर एग्जांपल हियर Subhadra is my client and he gave me
a project to done for his for her company to develop a software वेबसाइट और एंड्रॉयड ऐप, कोई भी हमें काम मिला है, मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे नीडेड है मिनिमम 3 मंथ टू डेवलप इट, ठीक है, बट एट द end डेट आई observe that software is not going to be developed till date, and this particular time this system will get face a problem that actually called crashes, and here is the crashes that is called software crashes. ये software crashes क्यों हो रही है? Because we are not following some set of SDLC rule that is written here, that is called system requirement specification, system analysis specification. Third one is system design specification. इसको सिस्टम बोलो या फिर सॉफ्टवेयर बोलो. Then after SCS, that is called system or software coding specification. And another one is fifth one, that is called software testing specification. इसको आप सिस्टम और सॉफ्टवेयर testing okay, and the last phase is that is called documentation and training. So these are the basic 5 phases. अब मैंने यहाँ 5 phases क्यों बोला? क्योंकि ये दोनों काम एक साथ हो जाता है. Software coding and testing, both specification are done in the same phase. That's why we have 5 phases of SDLC. इसी 5 phases में सारे काम करने हैं. अब ये क्या क्या है इसमें? फर्स्ट पॉइंट, SRS for requirement specification. That means आपने जो सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम जो बनानी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. जैसे आप आइडेंटिफाई करते हो, I wanted to be a doctor, I wanted to be an engineer, I wanted to be a defense person, I wanted to be a navy person, जो भी है, and I wanted to be a teacher also. तो आपने एक टारगेट किया, that is your requirement, that you are going to deal with it. Next, you will identify that what are the demerit inside you, what are the practices you needed to use, you needed to work for it, and what should not be here. That means क्या चीजें हैं जो उसको हटानी है. अब जैसे मेरे जैसा आदमी अगर कहेगा कि मैं डिफेंस में जाना चाहता हूँ, तो ये मेरे लिए सपना हो सकता है क्योंकि मेरे पास हाइट नहीं है. तो उस बेसिस में मुझे यार रिक्वायरमेंट हटानी पड़ेगी. आई कांट बी अ डिफेंस पर्सन. बड़ी और बात है मैं एनडीए जा सकता हूँ लेकिन अब एज नहीं है. क्या नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग. तो हमारे पास नंबर ऑफ ऐसे रिक्वायरमेंट होंगे जिसको हमें हटाना पड़ेगा ड्यू टू, या कह सकते हो, लैक ऑफ प्रॉब्लम्स. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. नेक्स्ट फेज, whatever the analysis that we have done for the required system is going to be designed. That means हमारा सॉफ्टवेयर का व्यू कैसा होगा, स्क्रीन कैसा दिखेगा, बटन कैसा दिखेगा, उसका डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा. That means उसको इंटरनली वो काम कैसे करेगा. Whatever the designing phase is going to be done inside here, and here till particular phase we do not use any computer. यहाँ तक कोई कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता है. Whenever we touch the term that is called fourth phase of development, then this particular time we need the computer, that is for coding of your system. जो भी यहाँ डिजाइन किए गए हैं, जो पेपर पे डिजाइन किए गए हैं, now we are going to code for it. तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स काम करते हैं. सबसे बेसिक लेवल पे कोडर होते हैं जो कोड करते हैं. देन आफ्टर प्रोग्रामर्स होते हैं जो उन कोड को यूज करते हैं अपने सिस्टम में. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो कोड प्रोग्रामर्स के बनाए हुए प्रोग्राम्स को अपने सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स में पुट करते हैं. एंड देन आफ्टर होते हैं सिस्टम एनालिस्ट जो आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट एक्चुअली you have developed and what are the demerit and what are the problem it has.
But between these two things, that means called software programming and software analysis, there is a term that is called system testing or software testing is going to be done. Here, the software that is going to be designed by the coder, programmer, or software engineer is going to be tested by the one of the team member that is called tester, who is going to test the system. And basically आप जाओगे अगर आईटी फील्ड में या कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, तो आपको दो चीजें हमेशा लगेगा, जिसको हम लोग कहते हैं अम, अ, इसको आप कह सकते हो सिंपली वार बिटवीन प्रोग्रामर एंड टेस्टर. अब एज फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन द टर्म हियर, यहाँ लिखता हूँ, ये मैंने लिखा क्या 6. तो फॉर मी इट इज अ 6, बट फ्रॉम योर साइड इट इज 9. So that actually the war going to be done here. तो नॉर्मली क्या होता है कि प्रोग्रामर्स का काम होता है प्रोग्राम करना, सिस्टम को डिजाइन करना, और टेस्टर का काम होता है उसमें खामियां निकालना, गलतियां निकालना. दैट मीन्स जो सिस्टम बनाई गई है, जब वो क्लाइंट के पास जाएगी तो किसी भी तरह का एरर या बग उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में नहीं होना चाहिए. एंड दैट एक्चुअली द वर्क ऑफ द टेस्टर that is going to be done inside here, and it is one of the largest phase of this particular software development. अगर कोई सॉफ्टवेयर एक महीने में बन रही है तो उसमें 15 डेज टेस्टिंग का काम चल रहा है. अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम 3 दिन में हो जाता है. बट to analyze its error and flexibility, we have to give it to the this phase that is called testing phase. And after the analysis or after the testing, software is going to be documented, that is called, हम लोग कहते हैं जैसे कोई भी चीजें आप मार्केट से खरीद के लाते हो तो उसके पीछे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, मैनुअल जिसको कहते हैं, वो मैनुअल होती है. देन आफ्टर जो भी इसके रिक्वायर्ड टीम मेंबर्स हैं, जो भी इसके आपके क्लाइंट हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं. एंड देन आफ्टर लास्ट टर्म होता है दैट एक्चुअली कॉल्ड फीडबैक. अब जो सिस्टम मैंने बनाई, मैंने आपको सिद्धार्थ को दी, सिद्धार्थ ने टेस्ट किया, सिद्धार्थ ने हमें हमारा ट्रेनिंग भी अटेंड किया, ट्रेनिंग लिया, एंड देन आफ्टर इन्होंने एनालाइज किया कि अगर मैं डेट ऑफ बर्थ के जगह स्टूडेंट का नाम पुट करता हूं तो वो ले लेता है. तो वैसे सेंस में यहाँ हमारा सॉफ्टवेयर में ये डिमेरिट है. तो ये फीडबैक इन्होंने दिया. अब इस तरीके से सुभद्रा ने भी दिया, निधि भी ने दिया, शिवम ने दिया, अपूर्वा ने दिया, सौम्या ने दिया, गौतम ने दिया. दैट मीन्स नंबर ऑफ client provide me the error report on this particular term. So these feedback is going to be used for the same phase that is called SRS. फिर से एनालाइज होगा कि क्या गलती किया था उसने, सॉफ्टवेयर में क्या गलती रह गई थी. फिर उस चीज को एनालाइज किया जा सकता है कि कौन सा एरर सॉल्व हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है. फिर से उसकी डिजाइनिंग फेज टेस्ट की जाएगी कि क्या डिजाइन बनाई गई थी, क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, एंड देन आफ्टर उसके रिक्वायरमेंट कोडिंग क्या होगी, टेस्टिंग क्या होगी, डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, ट्रेनिंग क्या होगी, अगेन फीडबैक. अब इसी का रिजल्ट आप देखते हो कि मेरे बचपन में, मैं अगर बात कर रहा हूँ 1995 की, तो 1995 में हमारे पास जो सॉफ्टवेयर थे विंडोज का, वो विंडोज NT XT था. विंडोज 95 आया, विंडोज 2000 आया, विंडोज 2002, 2003, 2006, 2007, विस्टा 8, 8.1, 8.1, एंड देन आफ्टर आया विंडोज 10. यानी आज अगर देखो तो पिछले 25 सालों में यहाँ पे जो भी चीजें चेंज हो रही है विद द हेल्प ऑफ फीडबैक. हम जैसे लोग फीडबैक देते हैं, देन आफ्टर उस पे डेवलपमेंट होती है, and after that we find the new product, and that actually the phases that is needed to be done here. So now I think you all have number of query, so I'm going to watch it one by one. Here sound is not clear, गौतम केशरी का कहना है कोई बात नहीं, टेक्स्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दीजिए. ओके प्राची, how we develop Android software, विजय. No doubt विजय, if you know, एक सिंपल सा बात बताता हूँ. अब मान लो एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि हाउ टू ड्राइव, बाइक कैसे चलाई जाती है, आपको अगर पता है, आपको अगर स्प्लेंडर दे दिया जाए या हायाबुसा दे दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपके पास वहां बेंटली दे दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ट्रम्प टाइगर दे दी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सेम चीजें यही है. आपको सिर्फ ये चीजें पता हो, मैं बाइक का नाम बोल रहा था, सुपर बाइक का, ये सारी चीजें पता हो तो आप दुनिया का कोई भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं. अब बात करते हैं, आपका अगर टॉपिक आपने दी है तो मैं थोड़ा सा इसमें
डील कर दूं। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं हमारे दो तरीके का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के स्पेसिफिकेशन की बात अभी नहीं करते हम लोग, क्योंकि वो काफी डेप्थ वर्क है। मैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करता हूँ। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री कैटेगरी टुडे, ओनली टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन, जो कि सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, अभी सामने आप यूज कर रहे हो गूगल, सॉरी जूम ऐप यूज कर रहे हैं हम लोग, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। नेक्स्ट वन है दैट इज कॉल्ड ऑफलाइन। ये दोनों तरीके के एप्स बनाए जाते हैं, ऑनलाइन एप्स, ऑफलाइन एप्स। अगर मैं सिर्फ ऑनलाइन की बात करूं तो ऑनलाइन ऐप नंबर ऑफ कैटेगरी में बनाए जाते हैं। फर्स्ट वन एक होता है जिसको बोलते हैं स्टैटिक, सॉरी स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स हो गया अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वेयर एवरीथिंग इज रिटन एंड नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज ऑटोमेटिकली। क्लियर है? यानी आप एक सारे के सारे चीजें पहले से बनी हुई है, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल आप लोग गेम खेलते हो, लूडो गेम, उसमें कोई भी चीजें नया नहीं होता है, बस नंबर ऑफ फेजेस बनाए हुए हैं, आपको सिर्फ उसको यूज करना है, नंबर ऑफ फेज को आपको पूरा करना है एंड देन यू हैव डन द जॉब। ठीक है? लेकिन इसमें डायनेमिक भी टर्म आता है। पबजी एग्जांपल है आपके पास डायनेमिक गेम के लिए, वहाँ ऑडियो एडिंग्स हो सकता है, वीडियो एडिंग्स हो सकता है, देन आफ्टर आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो और उसको रीयूज भी कर सकते हो। देन आफ्टर आप देखते हो आपके गन रिफिल भी होते हैं, बहुत सारी चीजें। तो वहां पे जो टर्म यूज हो रहा है दैट एक्चुअली कॉल्ड डायनामिक। ठीक है? तो ऑनलाइन में दो तरीके की चीजें होगी, एक होगी स्टैटिक, एक होगी डायनामिक। स्टैटिक को सिंपली हम लोग वेब साइट या वेब पेज कहते हैं। ठीक है? जो स्टैटिक फॉर्म में होता है। अगर ये डायनेमिक फॉर्म में है तो इसको हम लोग वेब ऐप बोलते हैं। ठीक है? वेब ऐप का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये डायनेमिक होता है, ये ऑटोमेटिक काम करता है। इसका रियल टाइम एग्जांपल मैं अभी जस्ट दिखा देता हूं, अभी आप लोग इसको कर भी रहे हो, जो भी मैंने जस्ट बनाई है आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखो ये एग्जामिनेशन सिस्टम है। अब यहाँ मैंने बहुत सारे अभी चेंजेस कर दी है। सिद्धार्थ सिद्धार्थ कुमार, अनम्यूट कर लो सिद्धार्थ। ये तो अनम्यूट होने से रहा। यस सर। हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। अपना एडमिशन नंबर बताओ। 18 18 58 58 2 2। डेट ऑफ बर्थ 21 21 8 8 2004। 2004। चलो यहाँ पे देखो फॉर्मेट भी लिखा हुआ है DDMMYYYYYY, जो भी है तो डैश के साथ देना है। सबमिट किया तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका ये एरर बता रहा है। फिर से बताओ डेट ऑफ बर्थ। 21 21 8 8 2004। सबमिट। अब जैसे ही सबमिट किया मैंने तो मेरे स्क्रीन पे ये आपका डेटा आ गया। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर सिस्टम काम कर रही है डायनेमिक काम कर रही है। अभी किसी और का दिखा रहा था, अब किसी और का दिखा रहा है, और ये आपके कैलकुलेशंस भी शो कर रहे हैं कि जो भी आपने पेमेंट की है उसका कैलकुलेशन भी दिख रहा है। किसी और का देखना है, फिर इस पे क्लिक किया, फिर इसको चेंज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ये जो मैंने सिस्टम बनाई है दैट इज एक्चुअली फुल्ली डायनेमिक। तो ऐसे टर्म को हम लोग बोलते हैं वेब ऐप। क्लियर है? सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डायनेमिक और स्टैटिक में अंतर क्या है। डायनेमिक हमारा चीजें क्या है, जो ऑटोमेटिक चेंज होता रहे हमारे डेटा के अकॉर्डिंग। हमने अगर अपना डेट ऑफ बर्थ यूज किया है, अपना एडमिशन नंबर यूज किया है, तो मेरा डाटा दिखाएगा। अगर मान लो यहाँ निधि का डाटा पुट कर रहे हैं तो निधि का डाटा दिखाएगा। तो दैट एक्चुअली अ काइंड ऑफ वेब पेजेस और वेब ऐप दैट इज डायनेमिक। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो हायर वर्जन आ रहे हैं, अब इस टर्म को हम लोग ऑनलाइन में एक और पार्ट ऐड करते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं मोबाइल ऐप या फिर एंड्रॉइड ऐप या फिर स्मार्टफोन ऐप। हम इसको एप्स बोलते हैं। ठीक है? अब इस ऐप को बनाने के लिए सेम कॉन्सेप्ट है जो हम लोग डायनेमिक में यूज करते हैं, जो स्टैटिक में यूज करते हैं। तो अगर आपको डायनेमिक काम करना आता है, स्टैटिक काम करना आता है, देन यू कैन आल्सो क्रिएट योर ओन एंड्रॉइड ऐप, स्मार्ट ऐप।
क्लियर है? ये ऑनलाइन का टर्म हो गया। अब ऑफलाइन के टर्म में बात करते हैं, तो ऑफलाइन में क्या क्या आता है? इन ऑफलाइन फॉर्म व्हेन वी गो फॉर इट, देन देयर इज अ टू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड MDI एंड SDI। ये आपने देखा होगा, किया होगा, लेकिन पता नहीं कि ये है क्या एक्चुअली। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, ठीक है? और इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। मैं थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूँ, कुछ ज्यादा डेप्थ में जा रहा हूँ, तो घबराना नहीं है, बस आज सुन लो, आगे काम आएगा, ठीक है? और मैंने पहले ही बोला कि ये कोर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए। तो MDI का मतलब होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, और SDI का मतलब होता है सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। इसका मीनिंग क्या है? अब एज फॉर एग्जांपल, अभी मैं काम कर रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर में जिसका नाम है OneNote, और यहाँ देखो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स एक साथ स्टोर हो जा रहे हैं। इवन हम उसको यूज कर पा रहे हैं, उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये जो पार्टिकुलर हमारा सिस्टम है, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसको हम लोग बोलेंगे MDI, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस एप्स, या फिर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके जगह पे अगर मैं यूज करता हूं यहाँ पे कैलसी, ये देखो यहाँ पे आपको कोई भी काम करना है वो सेम सिंगल स्क्रीन पे ही दिखता है। जो भी आपको ऐड करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, वो सारी चीजें ऑन द सेम स्क्रीन दिखता है। नथिंग इज गोइंग टू बी एडेड। तो कोई भी नया चीज आपको इसमें ऐड नहीं हो रहा है। तो ऐसा सेंस में इसको बोलते हैं हम लोग SDI। JP सर अभी क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे, ठीक है? तो ये हमारा टर्म हो गया MDI एंड SDI। कॉन्सेप्ट में भी क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है, नाउ इट्स टाइम टू